A very good morning to all students. Let's we discuss the sum of the case studies, value-based and multidisciplinary question, which already comes in your last few year question paper conducted by CBSE. So you know very well we discussed the case studies related to class 12 business studies, and in this video we discussed a lots of the case study from the different chapters, and most of the question asked by the CBSE in the last few years. As you know very well, in the last few videos we discussed the model paper issued by CBSE for the academic year 2020-21, and this model paper contains a 34 question. Out of them 6 to 10 question are from the case studies. So it is very important to studied after the theoretical parts given in the book. Let's we discuss the case study from the different chapters. So without creating any delay, let's we discuss the case studies from the different chapters. The first case studies which are related to the business environment chapters, as you know very well. The question is, Rajiv, the owner of Pathways Construction, decided to start a campaign to create awareness among people for developing clean surrounding in their area. He formed a team of 10 members to list the different ways for cleaning the surrounding. One suggested to take the help of local residents. Another suggested that they may involve school-going children in their venture. One more suggestion was to take the help of unemployed youth. On evaluation of different ways, it was decided to take the help of local residents. To achieve the desired goal, various activities were identified, like purchase of necessary items like a dustbin, garbage bags, brooms, and the collection of garbage, disposal of garbage, etc. After identification of different activities, the work was allocated to different members. The question number 1 is, identify the concept of management involved in the above situation and quote the line which help in their identification. Also identify the values which the company wants to contribute the societies. So इस पूरे पैराग्राफ में यू कैन सी दैट एक पूरा मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ पर रन कर रहा है. कह सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. कौन कौन से मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली उसके पहले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लाइंस हैं जो इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं कि अगर प्लानिंग है तो प्लानिंग का कौन सा पार्ट है. तो यू कैन सी दैट Rajiv, the owner of Pathways Construction, decided to start a campaign to create awareness among the people for developing clean surrounding in their area. राजीव जो ओनर हैं पाथवेज कंस्ट्रक्शन के, उन्होंने डिसाइड किया, कैंपेन स्टार्ट किया कि ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए कि वो अपने आसपास के एरियाज़ को क्या रखें, क्लीन रखें. इन देयर एरिया ही फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 10 मेंबर टू लिस्ट द डिफरेंट वेज फॉर क्लीनिंग एंड सराउंडिंग. और उन्होंने एक 10 मेंबर की टीम डिसाइड की जो आसपास के एरियाज़ को साफ रखेंगे. तो ये देखिए कुछ लाइंस हैं. अब इसके आंसर्स पे हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन CBSE के सैम्पल पेपर 2015 में आ चुका है. लिखा है कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. और अगर हम प्लानिंग की लाइन की बात करें तो प्लानिंग हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है वन सजेस्टेड टू टेक द हेल्प ऑफ लोकल रेसिडेंट. अनदर सजेस्टेड दैट दे मे इन्वॉल्व स्कूल गोइंग द चिल्ड्रन इन द वेंचर. One more suggestion was to take the help of unemployed youth. On evaluation of different ways, ऑफिसर के पास लिखा है on evaluation of different ways, it was decided to take the help of locals and to achieve the desired goal. Various activities were identified. और जब हम कई सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ओके, सो जो हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वो सब प्लानिंग का पार्ट है. वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को डिफाइन किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क. सो उसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे उसमें आपने देखा होगा परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स हैं, कलेक्शन ऑफ गार्बेज है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है, ये सब चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की. सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने
कुछ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किए, जैसे कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और उससे रिलेटेड जो लाइन्स हैं विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द पैराग्राफ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, respect of environment, teamwork, fulfilling social responsibility. Okay, so let's we move to the question number 2. The second question from the case studies from the different chapter, that is in Stylecraft Limited, a leading manufacturer of leather goods, decided to start a new factory for the regional development of rural area of Uttar Pradesh. The general manager of the company is deciding to structure the organization as per there are 4 main activities: marketing, production, finance and personnel. So you can see that Stylecraft Limited एक लीडर मैन्युफैक्चर लेदर गुड्स कंपनी है जिसने डिसाइड किया कि वो एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करेगी रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जगह जगह उसके शॉप्स ओपन हो। द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी इज डिसाइडिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो जनरल मैनेजर है उस कंपनी को उन्होंने डिसाइड किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो 4 मेन एक्टिविटी में डिवाइड होगा: मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड पर्सनल। द क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। सबसे पहला इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, तो यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टाइलक्राफ्ट लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर कंपनी जो लेदर गुड्स बनाती है उसने न्यू फैक्ट्री स्टार्ट किया रीजनल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। रूरल मतलब गांव में उन्होंने सारी फैक्ट्रीज ओपन करने की स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा बेसिकली पहले तो रूरल में डेवलपमेंट आएगा, रूरल डेवलपमेंट होगा और रूरल एरिया में ईजिली लेदर गुड्स अवेलेबल हो पाएंगे, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा। तो इट इज़ एन अगर हम बात करें इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, नो। क्या ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर है? यस। सो सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ कंप्लीट होता है एंड द राइट आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव। द क्वेश्चन नंबर 3 इज Kaiko Limited is manufacturing detergent. They decided to launch a new range of herbal products as they are in a hurry and they have tested product on the animal only. The necessary information is missing on the package and the management also plans to launch a new factory in a tribal area where the required products are easily available and the labor, men, women and children are available for the work at low wages in the absence of the development opportunities and school. So you can see that इस पैराग्राफ में क्लियरली पूछा हुआ है कि काइको लिमिटेड डिटर्जेंट बनाती है, उसने डिसाइड किया कि वो हर्बल प्रोडक्ट का न्यू रेंज लॉन्च करेगी। एज दे आर इन हरी, वो सब जल्दी में है, एंड दे हैव टेस्टेड प्रोडक्ट ऑन एनिमल ओनली, उन्होंने ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एनिमल पे ही टेस्ट किया क्योंकि वो जल्दीबाजी थी उन लोगों को। द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग ऑन द पैकेज, और पैकेज में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो भी मिस थी। द मैनेजमेंट ऑल्सो प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू फैक्ट्री इन अ ट्राइबल एरिया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो नई फैक्ट्री लॉन्च करेगी कहाँ पर? ट्राइबल एरिया में। वेयर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आर ईजिली अवेलेबल, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल रहेंगे, एंड द लेबर, मैन, वोमेन एंड ली चिल्ड्रन आर अवेलेबल फॉर द वर्क, क्योंकि वहाँ पर पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यू फैक्ट्री ट्राइबल एरिया में लॉन्च करने की कोशिश की गई, यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो उनको मैन्युफैक्चर करें वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ के जो लेबर है, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो चिल्ड्रन है, वो ईजिली अवेल हो जाएंगे और कम पैसे में, इन द अब्सेंस ऑफ द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन स्कूल। और वहाँ पे हमें किसी तरह के अलग कोई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है या स्कूल डेवलप, यानी एक तरह से घुमा फिरा के कंपनी का फ़ायदा होगा, उसे कम से कम सोशल वेलफेयर पूरा करना पड़ेगा और ज़्यादा से प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन था पहला, विच वैल्यूज़ डू यू फाइंड डिस्टर्बिंग इन द अबव पैरा। इस पैराग्राफ में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिस्टर्ब है, यानी कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो नहीं किया गया। पहला, टेस्टिंग ऑन एनिमल इज़ बैंड, एनिमल पे टेस्टिंग करना बैंड है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन द पैकेज इज़ वायलेशन टू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन
प्रोडक्ट पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लूज हो रहा है, पहला। सेकेंड, विल द डिसीजन टू इंस्टॉल अ न्यू यूनिट इन अ ट्राइबल एरिया हेल्प सोसाइटी। अब यहाँ पे देखे लिखा है, क्या एक तरह से पूछा जा रहा है न्यू यूनिट इंस्टॉल करना ट्राइबल एरिया में सोसाइटी को हेल्प करेगा। हाईलाइट द सोशल वैल्यूज इन्वॉल्व इन दिस रीजन। तो क्लियरली यस, ये जो डिसीज़न है वो ट्राइबल एरिया में जब हम कोई न्यू यूनिट इंस्टॉल करेंगे तो इस कहीं ना कहीं से ट्राइबल जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं से डेवलप्ड होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो ट्राइबल एरियाज़ की जो यूनिट्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लान से डेवलप नहीं होगी। 10% ही होगी, 20% ही होगी, लेकिन होगी, डेवलप तो होगा। क्यों होगा देख लीजिए, खुद ही क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोशल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। जैसे पहला, द ट्राइबल लेबर मैन एंड वुमेन विल गेट इक्वल मिनिमम वेजेस टू अर्न देयर लिवलीहुड। उनको कुछ ना कुछ वेजेस मिलेगा, जो इसको हम कहते हैं मिनिमम वेजेस तो मिलेगा, जिससे वो अपना जीवन ईजिली जी सकते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ बैंड, सो स्कूल शुड बी ओपन फॉर देम। चाइल्ड लेबर बैंड हो और उनके लिए स्कूल खुले। स्कूल एंड अदर सपोर्टिव एक्टिविटीज़ विल हेल्प द कम्युनिटी डेवलपमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Next, the question number 4, Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational companies at the same level. दोनों ही निकिता एंड सलमान दोनों ही MBA कंप्लीट किया, उन्होंने फिर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना स्टार्ट किया सेम लेवल पे। बोथ आर वर्किंग हार्ड, दोनों ने ही हार्डली वर्क किया, एंड हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर, और वो अपने एम्प्लॉयर यानी अपने मालिक से खुश थे। सुमित हैड द हैबिट ऑफ बैक बिटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। सलमान को एक प्रॉब्लम थी कि उसे बैक बिटिंग करने की प्रॉब्लम थी, यानी कि वो लोगों की बुराइयां करता था पीठ पीछे और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता था अपने कलीग्स की बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट इट। सारे एम्प्लॉयज़ जो थे ऑर्गेनाइजेशन के वो उसके बारे में जानते थे। एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ तो द परफॉर्मेंस ऑफ द निकिता वॉज जस्ट बेटर देन द सलमान। क्या हुआ कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र किया गया, तो ये फाइंड आउट किया गया कि निकिता जो थी उन्होंने निकिता वॉज जस्ट बेटर देन द सलमान, निकिता ने सलमान से ज़्यादा बेटर किया। इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हायर पोस्ट। देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर है, जैसे यहाँ लिख रहा है एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वॉज जस्ट बेटर देन द सलमान। परफॉर्मेंस बेटर किसका था, निकिता का, बट उसके बावजूद भी सलमान को क्या दिया गया, प्रमोशन दिया गया, क्योंकि उसके बॉस का कहना था कि निकिता जो है वो बेटर जो हायर पोस्ट है वो हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज नॉट फॉलोड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। आपको एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जो कि मल्टीनेशनल कंपनी ने फॉलो नहीं किया। सेकेंड, आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ विच आर बिंग इग्नोर्ड कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। आपको ये भी बताना है कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे इग्नोर की गई है। पहला है द प्रिंसिपल वायलेटेज इज इक्विटी। वाई? बिकॉज यू कैन सी दैट सलमान एंड निकिता दोनों के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा है। दोनों का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अकॉर्डिंग प्रमोशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द इक्विटी कॉन्सेप्ट, यू नो वेरी वेल, हमें दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, चाहे उनका बिहेवियर हो। और वैल्यूज़ की बात करें जो इग्नोर की गई है, जैसे गुड ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज सलमान हैड द हैबिट ऑफ बैक बिटिंग एंड द रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। जेंडर बायसनेस भी यहाँ की गई क्योंकि उसका बॉस ने निकिता को इसलिए हायर पोस्ट पे प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि उसको लगता था कि हायर पोस्ट की जो कॉम्प्लिकेशन है वो निकिता बियर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Mr. Nath, a recently appointed production manager of Suntech Limited, has decided to produce jute bags instead of the plastic bags. As these are banned by the government, he set a target of producing 1000 jute bags a day. It was reported that the employees were not able to achieve the target. After analysis, he found that
employees were demotivated and not putting in their best target. Mr. Nas's behavior is good towards the employees. His attitude is always positive, so he announced various incentive schemes for the employees, like installing award or certificate for the best performance. Second, rewarding an employee for giving valuable suggestion. Third, congratulating the employees for good performance. देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मिस्टर नाथ रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सनटेक लिमिटेड में फॉर व्हाट पर्पस, डिसाइड हुए हैं जूट बैग्स प्रोडक्शन करना, और अपॉइंट हुए प्रोडक्शन मैनेजर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जूट बैग प्रोड्यूस करेंगे, प्लास्टिक बैग प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। उन्होंने टारगेट किया कि वो हर डे 1000 जूट बैग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़, इट वॉज रिपोर्टेड दैट द एम्प्लॉयज़ वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, और ये रिपोर्ट किया गया एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें एनालाइज की। एम्प्लॉयज़ वर डीमोटिवेटेड, नॉट पुटिंग इन देयर बेस्ट अचीविंग द टारगेट, और ये भी फाइंड आउट किया गया कि एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड है, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एंड मिस्टर नाथ बिहेवियर इज गुड्स टुवर्ड द एम्प्लॉयज, मिस्टर नाथ अपने एम्प्लॉयज से अच्छा बिहेवियर करते थे, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता था। सो उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंसेंटिव इन स्कीम देंगे। किसको इंसेंटिव इन स्कीम देंगे? अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। कैसे देंगे? उनको अवार्ड देंगे, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको सर्टिफिकेट देंगे, और रिवॉर्ड देंगे एम्प्लॉयज़ को अगर कोई वैल्यूएबल सजेशन देता है तो, और एम्प्लॉयज़ को उनकी गुड परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द पैराग्राफ। सेकंड, स्टेट द इंसेंटिव अंडर द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। स्टेट एनी टू वैल्यूज विच द प्रोडक्शन मैनेजर वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी बाय हिज वर्क एंड बिहेवियर। सो यू कैन सी दैट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? इस क्वेश्चन में है, जैसे आपने देखा उसने स्टैंडर्ड था 1000 यूनिट, और इसमें ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया कि अप टू मार्क नहीं है, तो ये कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड अप करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं, फिर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डेविएशन को, और साथ ही साथ इसमें हमने मोटिवेशन की भी बात की क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो डीमोटिवेटेड है, तो मोटिवेशन इज़ अ फैक्ट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग। सो इसमें डायरेक्टिंग फंक्शन को भी इन्वॉल्व किया गया है। कंट्रोलिंग क्यों किया गया? क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, डेविएशन है, डेविएशन का रीज़न है, और साथ ही साथ इसमें हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इसमें डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है, स्टेट द इंसेंटिव अंडर विच एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड। आपको इसमें बताना है कौन कौन से इंसेंटिव की बात की गई है। तो इंसेंटिव यू कैन सी दैट हम अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। कोई एम्प्लॉय अगर वैल्यूएबल सजेशन देगा तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, कोई अच्छी परफॉर्मेंस देगा एम्प्लॉयज़ तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। तो इसमें कौन सा इंसेंटिव है? दैट इज़ अ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का इसमें एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड किया गया है। और वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें कुछ वैल्यूज़ है जैसे सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स एम्प्लॉय एंड टीम वर्क विद एम्प्लॉयज़। इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दिस इज एन क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is the manager of the company is overburdened with the routine work and is unable to concentrate on the core issues of the company. To overcome this problem, he entrusted some of his responsibilities and authorities to his immediate subordinate to share some of his routine work. एक मैनेजर है कंपनी का जो अपने काम को लेके बहुत ही ओवरबर्डन है, और रूटीन वर्क, वो जो बिजनेस की जो रूटीन वर्क है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। सो इस प्रॉब्लम को उसने दूर करने के लिए क्या किया? अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को शेयर कर दी ताकि वो अपने रूटीन वर्क को और अच्छे से कर सके। एंड द क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज यूज बाय द मैनेजर एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन टू वन ऑफ द विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेम द प्रिंसिपल. So you can see that the first question is which process is used by the manager. The answer is delegation of authority. You know very well, delegation of authority is a process by which the one person delegate his authority and responsibility to his immediate subordinate, and it is an extension of to one of the principle of management. It is a very popular principle, that is in division of work. You know very well, जब काम बहुत ही बड़ा होता है
बहुत ही लेंदी होता है, तो हम उस काम को और ईजी से परफॉर्म करने उस काम को डिवाइड कर देते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. And the next question is question number 7, and it is a very popular question. The court passed an order to ban polythene bags. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि पॉलीथीन बैग बैन होंगे. These bags are creating many environmental problem which affect the life of the people in general. और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पॉलीथीन बैग बैन होनी चाहिए क्योंकि ये बैग्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और ये बिजनेस जो पीपल्स वर्क कर रहे हैं लाइफ उनकी लाइफ को इफेक्ट करेगा. सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सोसाइटी अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है और इम्प्रूव होनी चाहिए. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बाय कोटिंग दिस लाइन फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स एंड ऑल्सो स्टेट एनी टू वैल्यूज कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी. आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन आइडेंटिफाई करना है, लाइन कोट करनी है और ऑल्सो जो टू वैल्यूज़ हैं उन्हें सोसाइटी को कम्युनिकेट करनी है. एंड द आंसर इज कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सिंपल सा पहली लाइन से दिख रहा है, तो ये एक लीगल इन्वॉल्वमेंट हो गया. और सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हुई है, लाइफ की क्वालिटी की बात हुई, यानी ये सोशल इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पे दो इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लीगल और एक सोशल. लीगल बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर पास किया एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट बिकॉज यहाँ लाइफ क्वालिटी की बात हो रही, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है. एंड वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इन्वॉल्वमेंट, फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज Minda Motors. Minda Motors automobile companies is producing 3 different types of vehicles: car, 2-wheelers and 3-wheelers. यानी कि जो मिंडा मोटर्स कंपनीज़ हैं वो 3 तरह के डिफरेंट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है: कार, 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, रिस्पेक्ट टू ईच टाइप ऑफ व्हीकल आर अंडर वन कॉमन डिपार्टमेंट. ये सारी एक्टिविटीज़ एक व्हीकल के थ्रू क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. ड्यू टू दिस द कंपनी इज अनेबल टू अचीव ओवरऑल. और इस कारण क्या हुआ कि वो अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. आपको ये बताना है विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्जर्व बाई मिंडा मोटर्स. कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया गया. देखिए यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि 3 तरह के व्हीकल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं: कार, 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर. और सारी एक्टिविटीज़ जो है कंपनीज़ की, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, रिस्पेक्ट टू ईच टाइप ऑफ व्हीकल, हर तरह के जो व्हीकल्स हैं वो सब एक कॉमन डिपार्टमेंट ही डिस्कस कर रहा है, डील कर रहा है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो डायरेक्शन की कमी है, क्योंकि एक तरह से हम बात करें कि सबके लिए कॉमन डिपार्टमेंट है. तो कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो अप नहीं हो रहा है? द राइट आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज सबकी डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो कॉमन डिपार्टमेंट बन रहा है वहाँ पर ड्यू टू दिस कंपनी पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को नहीं पहुँच पाएगी. क्योंकि अगर हम काम को बांटेंगे नहीं तो सबको अपने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे, सबके अपने अपने डायरेक्शन, तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें. तो इसलिए यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, चाहे परचेज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग है, सबका एक ही डिपार्टमेंट है. तो अब आप खुद ही सोचो, तो यहाँ डायरेक्शन की कमी है और यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर बना हुआ, जबकि यहाँ होना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट मैनेजमेंट ऑफ पार्को लिमिटेड एम्फेसिस ओनली ऑन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट जो है पार्को लिमिटेड का वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा फोकस करता है. ये क्वेश्चन 2014 सैम्पल पेपर में आया हुआ है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव विच आर बीइंग इग्नोर्ड. आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऑब्जेक्टिव जो है वो इग्नोर किए जा रहे हैं, और कोई 2 वैल्यू बतानी है विच आर कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी वाइल फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव. So you can see that the 2 other objective which Parco has ignored, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा कंपनी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, सोशल एंड पर्सनल. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. बट यहाँ पे कंपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फोकस ना करके सिर्फ किस ऑब्जेक्टिव को फोकस करिए, सोशल एंड पर्सनल. सो व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी. As a part of society, every organization, whether it is a business
or non-business has a social obligation to fulfill. This refers to consistently creating economic value for various constituents of society. And the number second is personal objective. Organizations are made up of people who have a different personality, backgrounds, experience and objective. ऑर्गेनाइजेशन कई सारे ऑब्जेक्टिव से बनता है, सो उनके अपनी अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं. दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू satisfy diversified needs. These vary from financial needs such as competitive salaries, perks, and social needs such as peer recognition and higher levels needs such as personal growth and development. So social needs जो होती हैं वो basically किस बात पे focus करती हैं? It focus on the society. So the second objective is a personal objective, and you can see that what is the meaning of personal objective. The organization are made up of people who are different personality, background, experience and objectives. They all become part of the organization to satisfy diverse needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition and higher level needs such as personal growth and development. And the values by which this quotient the communicated while performing these objectives, that is in concern for environmental protection, as an obligation to the society, to the business organization would adapt to using environment friendly method of production, as well as the providing employment opportunities to disadvantaged section of the societies, treating all employees fairly by providing them opportunity for personal growth, offering fair wages. And these are the solution of the question number 9. Next we move to the question number 10, and the question number 10 is Skype Limited follow the policy of paying less salary to women worker. Skype Limited follow the policy of paying less salary to women workers as compared to men workers, even if they do some work. This has caused a lot of problem for the companies, as Women Empowerment Cell has asked all the women of that area to stop buying goods produced by Skype Limited. The first question is identify the objective of management violated in this case, which dimension of business environment is being indicated in this given case, and also identify the principle of management not followed. So you can see that Skype Limited ने एक पॉलिसी फॉलो की कि वो कम से कम सैलरी देगी वुमेन वर्कर को मैन वर्कर के कंपैरिजन में, चाहे वो सेम वर्क करें या डिफरेंट. दिस हैज़ कॉज्ड अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, जिससे जो कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. वुमेन एम्पावरमेंट सेल हैज़ आस्क्ड ऑल द वुमेन, और वुमेन एम्पावरमेंट सेल ने कहा सारी वुमेन को कि आप इस कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट को मत खरीदो. अब आप खुद देखो कि यहाँ पर हम सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं. वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज़ इक्विटी, वो वायलेट हो गया. और यहाँ पर हमने सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया. और ये बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा डायमेंशन है? सोशल इन्वायरमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूरी तरह से सोशल इश्यूज़ पे बेसिस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बेसिस है. तो फर्स्ट क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा वायलेटेड हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव. Which dimension of business environment is being indicated in the given case? That is in social environment. And identify the principle of management not followed. कौन सा principle of management follow नहीं हुआ उसको भी identify करना है. That is an equity. Now we are moving to the 11th question. 11th question is Nishant, the director of garments company, is planning to manufacture bags for the utilization of waste material from one of his garment units. निशांत जो कि गारमेंट कंपनी का डायरेक्टर है, उसने प्लानिंग किया कि वो मैन्युफैक्चर करेगा बैग्स. किस से बैग बनाएगा? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं गारमेंट्स यूनिट्स के, उनसे. ही हैज़ डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेटअप इन रूरल एरिया ऑफ उड़ीसा. और उसने डिसाइड किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सेटअप करेगा कहाँ? उड़ीसा में. हु वेयर पीपल हैव फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लेबर इज़ अवेलेबल एट वेरी फ्यू रेट्स. जहाँ पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और लेबर भी काफ़ी कम वैल्यू पे अवेलेबल होगा. ही हैज़ ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड वुमेन. और उसने ये भी सोचा कि वो मैन वर्कर हो चाहे वुमेन वर्कर हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा
For this, he wants 4 different head for sales, accounts, purchase, production. He gives an advertisement and shortlists 10 candidates per post after conducting different selection test. Identify the state. Question ध्यान समझिएगा. Identify in a state. Next 3 steps for choosing the best candidate of the candidates. And number B, also identify 2 values by which Nishant wants to communicate to society by setting up this manufacturing unit. And this question is also asked in the CBSE Delhi 2012-13. So it is your homework for today's video. आप इस वीडियो को देखिए और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर अपने वर्ड में लिखिए. इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा. तो आपको इस स्टेप को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद के 3 स्टेप लिखने हैं और आपकी वैल्यूज़ भी आइडेंटिफाई करनी है इस क्वेश्चन में. ओके सो एंड आई होप कि आप ये होमवर्क हमें सेंड करेंगे. एंड इन today's session we started after discussing the model paper issued by CBSE for the academic year 2020-21, and in this session now we are talking about the case study from the different chapter which are asked in the last few years examination conducted by the CBSE for class 12 business studies. So I hope today we cleared all the topics and all the doubts very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.